السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھا ہوں جو سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو، اپنے آپ کو پہلے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے۔ یہ آیت تربیت اولاد کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ آج اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ماں باپ اگر وہ خود نمازی ہیں، متقی ہیں، لیکن بچوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت بگاڑ ہے۔ بچے آج ماڈرن ٹائپ کے بن رہے ہیں، ماڈرن اسٹائل اپنا رہے ہیں، چاہے ان کا رہن سہن ہو، چال چلن ہو، پہناوا ہو، بال کے کٹانے کی جو ہے اسٹائل ہو، ہر ایک مغرب کا فیشن، غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، اور ماں باپ اس کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، ان کو اسلام کے طور طریقے پر چلنے کی تعلیم دے، نماز کی تاکید کرے، اسی طریقے سے غیروں کی مشابہت اور نقالی کرنے سے ان کو روکے، اور ہر قسم کے برائی سے خود بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچنے کی تاکید کرے۔ یہ ہر ماں باپ کی، ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم خود شرک سے بچ رہے ہیں، بدعات و خرافات سے بچ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور ہر قسم کے شرک سے، شرکیہ کاموں سے، چاہے وہ تعویذ گھنٹے لٹکانے کی بات ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے غیر اللہ سے کچھ مدد مانگنے کی بات ہو، یہ سب سراسر شرک ہے۔ اسے تمام شرکیہ کاموں سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بدعات اور خرافات سے جب ہم خود بچ رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے کہ چاہے وہ عید میلاد کے نام سے ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی بدعت ہو، ہر قسم کے بدعت سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ برتھ ڈے منانے کا ہو، یا اسی طریقے سے شادی ڈے منانے کا ہو۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان، جو کہ ایک نبی تو نہیں ہیں لیکن بہت ہی اچھے انسان، ایک ولی صفت انسان ہیں، ان کے نام سے قرآن کے اندر ایک سورت ہی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس میں ایک نصیحت حضرت لقمان نے یہ بھی کی تھی
या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्या है मेरे बेटे तो शिरक मत करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से नमाज की ताकीद की और उन्होंने हर किस्म के तकब्बुर करने से, फ़ख्र करने से, घमंड करने से और इसी तरीके से तमाम किस्म के बुराइयों से बचने की ताकीद की। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सबई वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज की ताकीद करो जबकि वो 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरा सिनीन, और अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ने का हुक्म दो जबकि वो 10 साल के हो जाएं। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजे, और सोने के वक्त उनके बिस्तरों को अलग कर दो। चूँकि 10 साल की उम्र में बच्चे शऊर की उम्र को पहुँच जाते हैं, तो इसलिए एक ही कपड़े में, एक ही चादर में लेट करके या एक ही बिस्तर पर लेट करके सोने के बजाय अलग अलग बिस्तर पर सोना, इसकी भी ताकीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इमाम है, जो हाकिम है, वो अपने रियाया का ज़िम्मेदार है, उसको उसके रियाया के बारे में पूछताछ की जाएगी कि उसने इंसाफ किया कि नहीं। मर्द अपने घर का ज़िम्मेदार है, उसको अपने घर के ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, उनकी तरबियत के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार है, उससे उसकी ज़िम्मेदारी का। तो इस तरीके से कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक ज़िम्मेदार है, हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। आज अक्सर माँ बाप देखा जाता है कि बच्चों को उनके मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच करके अंग्रेज़ी तालीम बहुत ज़्यादा देते हैं, स्कूल की तालीम देते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं, और इसी तरीके से बड़ी बड़ी पढ़ाई जो दुनिया के ताल्लुक़ से MBA और ना जाने कैसी कैसी जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, कुरान पढ़ना और समझना सिखाएं, कुरान की तालीमात दें, इस्लाम की तालीमात दें, बच्चों को ईमान क्या है, अक़ीदा क्या है, इसी तरीके से ईमान के अरकान कितने हैं, इस्लाम के अरकान कितने हैं, इस्लाम की बुनियाद क्या है। यानी इस्लाम की तालीम देने को छोड़ देते हैं अक्सर माँ बाप। तो अक्सर क्या होता है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँचते हैं, चूँकि बच्चों को दुनियावी तालीम तो मुकम्मल देते हैं लेकिन दीनी तालीम से बिल्कुल दूर रख देते हैं, तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि माँ बाप की इस्लाम के अंदर क्या कदर है, क्या अहमियत है। वही बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड होम में, ओल्ड एज में भगा करके घर से निकाल के भेज देते हैं, तो कितने अफसोस की बात है। इसलिए ज़िम्मेदारी है हर माँ बाप की कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत से रोशनास कराएं, उनकी फ़िक्र करें, हर मौके पर उनका ख्याल रखें। बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे जो है गलत किस्म के जो है वीडियो गेम और ना जाने किन किन चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। तो हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें, देखभाल करें, और बच्चे बाहर किन बच्चों से दोस्ती रखते हैं, बुरे बच्चों के साथ दोस्ती है तो ऐसे बच्चों से दूर रखने की कोशिश करें। और चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, हर एक की तरबियत करना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अगर इस ज़िम्मेदारी को हम नहीं अदा करेंगे तो माँ बाप कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें कुरान और हदीस को समझने और अब ख़ुद अपने आप को हर किस्म के गुनाहों से बचने और अपने बच्चों को भी सही तरबियत से हमकिनार करने की
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔